Okay, let us start with this. My name is Harshit Dalvi, and ये video seventh standard physics subject and lesson number one में जो 22 sums है उसके लिए I'm getting many messages and calls also because some divisions have got a holiday last week also and ये week also. So थोड़े sums उनको सिखाने रह गए थे just because of this two holidays. So especially for the division F, C, and D, I am doing this all again for you. So let us begin with this. Students, open up your page number 24, lesson number 1, 24, and let us try to solve this 22 sum right now. Okay, so your eyes should be on the screen, and we'll begin with this paint. Okay, there are 22 sums जिसमें से the starting के सब minor sums है and the hardest sums are something after the 10 and also in the ending. So let us start step by step. Okay, the sum number 1, page number 24, sum number 1. Okay, let us begin with this. Where is my pencil? Okay, example number 1 we had over here is find the area of the circle of the radius 7 centimeter. Okay, find the area. This is really a minus sum, but let us do this. Okay, first of all, the area of the circle, what we got is, first of all, the area of the circle, what we got is the formula that is the pi r square, and then pi you can take a 3.14, but since radius 7 है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है. We can take 22/7. The pi r square means 2 times 7, and what we can do is we can cancel this, and what we get exactly is 22 into the 7, and if you multiply this you surely get a 154 as your answer. Okay, one second, let me switch this. Okay, this was your example number 1, and let us begin with your example number 2. What we have over here, the length of the school playground. Okay, length and the breadth is given, and they are saying कि उसे convert करना है in the hectares. Okay, first of all, अगर कोई भी geometrical shape you are seeing, तो उससे पहला उसका पहला एरिया या वॉल्यूम निकालो एंड उसके बाद कंटिन्यू करो. अभी यहाँ पे उन लोग ने बोला है कि एरिया निकालो. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर is something called as the length into the breadth is the area का formula, and that does multiply this 105 into 180, 105 into 180, and we get मतलब इसका आंसर if you multiply this you'll get 18900. ओके, बट कंडीशन अप्लाई, यूनिट्स भी कभी कभी देखो इट्स अ मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर को हेक्टर्स में हमें कन्वर्ट करना है. ओके, ये हम लोग को मिला, दैट इज इन द मीटर्स. नाउ द कंडीशन इज हेक्टर्स. अभी इफ यू सी ये लेसन का सेकेंड है, तो थर्ड पेज के ऊपर किधर तो हेक्टर्स का कन्वर्जन दिया है, एंड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई. जस्ट लाइक अगर नहीं, अभी एग्जांपल का टाइम नहीं, विल डायरेक्टली स्विच विद द दिस सम ओनली. ओके, if 1 hectare is equal to unit, tens, 100,000, 10,000, a 10,000, a 10,000 meter square. तो कितना हेक्टर इज इक्वल टू, सो कितना हेक्टर्स इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग इज this 18, and that is 900. So you have to just do the cross multiplication like this. This 1 into this 18900 and x into जो ऊपर लिखा है the 10,000 meter square. Okay, after this cross multiplication you will surely get a 1.89 hectares. अगेन आई एम सेइंग सेकंड पेज ये लेसन का देखो, उसमें हेक्टर्स का बहुत अच्छा कन्वर्जन दिया है. ओके, yes, that is all fine. Let us start with the third sum. One second, let me switch this. Okay, what we have is, okay, let me switch this. Example number 3, the diameter of the coin is given and find the surface area. Again this is also the same sum जो हमें ऊपर मिला था, just like example number 1, but still we'll solve this. Okay, same formula we have to use, pi r square and then pi 22/7, and the r इस बार क्या दिया हम लोग ने. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निक वापस यूज होने वाला है. डायमीटर उन लोग ने दिया है 4.2, डायमीटर 4.2, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो विल गेट 2.1 एज योर रेडियस. दिस इज योर रेडियस.
ओके सो 2.1 हमें लिखना है इनटू 2.1 बिकॉज वो स्क्वायर है इन द फॉर्मूला इफ यू सी यहाँ पे आर स्क्वायर है एंड उसके बाद भूल जाओ कि वो 2.1 है इमेजिन करो ये 21 ही है तो व्हाट वी कैन गेट इज 7 वन जा एंड ये अगर 3 जा होता है तो वी कैन राइट योर 0.3 एंड इफ यू मल्टीप्लाई योर दिस होल मीन्स your 22 this your 0.3 this your 2.1 अगर ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get something like 13.86 cm square. So that's all. This was your third question. Let us continue with your fourth question. Okay, the fourth question. If you have any doubt, you can comment on this video. You can message me anytime. You can call me also. Okay, let us start with the fourth video. The fourth video what we have, I think so इसका diagram मुझे draw करना पड़ेगा. Okay, the example number 4, what we got is over here. Example number 4. This is what we have is the cube, जिसका length, breadth, and height here. And what they are saying is, okay, they're saying about the volume. They're saying about the volume. Okay, that's so fun. They're saying about the volume. Okay, let us find out this. First of all, length, breadth, and height. ओके तो क्या क्या उन लोग ने दिया है दैट इज योर 3 into your 2 into your ओके 1.2 ओके लेट अस सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इज 7.2 m क्यूब रिमेंबर जब हम लोग m स्क्वायर लिखते हैं या cm स्क्वायर लिखते हैं cm स्क्वायर तो ये एरिया है दिस इज द एरिया एंड व्हेन वी राइट समथिंग कॉल्ड एज द क्यूब तो उसे वॉल्यूम बोलते हैं ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस next thing what we have over here is this. The volume of the tank is इतना तो हम लोग को मिल गया. The volume of the tank is 7.2. But now they are saying is m cube में मिल गया liters में चाहिए. And liters में remember one thing. एक formula जो मैं हमेशा बोलता हूँ that is 1 ml is equal to 1 cm cm square. ये हमेशा याद में रखो. And now let us see of this what we are getting over here is one second. Okay. That's so fine. That's so fine. Again, one more cross multiplication. One more cross multiplication. If 1 liter is equal to 1,000 ml, 1,000 ml, 1,000 ml. So cross multiply. We have to multiply by 7.2 into the 1,000, and surely the answer what you will get is something called as your this 7,000. Where is this 7,200. ये सम बहुत इजी है लेकिन लोगों को हार्ड जाता है बिकॉज उन्हें ये कन्वर्जन पता नहीं रहता 1 liter is equal to 1,000 ml or 1,000 otherwise you can write like this also 1 m cube is equal to the 1,000 नहीं sorry 1 second 1 m cube where is this okay 1 m cube is equal to the 1,000 हाँ yes you can write this also मतलब is direct conversion this is direct conversion मतलब in anyhow you have to multiply with the 1,000 okay so this was the sum okay let us carry on with your next sum what we got is the example number 5 I think इसका तो मुझे diagram draw करना ही पड़ेगा okay example number 5 we have over here we have the cube then आज ड्राइंग करने के लिए उतना टाइम नहीं है बट स्टिल आई विल डू दिस बिकॉज थोड़ा नेसेसरी है ये ओके योर आईज ऑन द स्क्रीन योर आईज ऑन योर स्क्रीन ओके this is your cylinder okay this is your cylinder and when is your pencil again okay let us do the marking what we got over here is the 3 point kitna 3.6 okay 3.6 3.6 is the iska height and what we got over here is the diameter okay we got the diameter one second where is okay we got a diameter that is the 8.4 again diameter 8.4 है and अगर इसका रेडियस चाहिए तो इसे 2 से डिवाइड करो it will be a 4.2 as your diameter and उसके आगे भी है सेंटीमीटर तो अगेन ओके इसमें बहुत से स्टेप है लेट अस स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप ओके फर्स्ट थिंग हमें रेडियस चाहिए था एंड हम लोग ने रेडियस निकाला दैट इज द 4.2 cm सेकेंड थिंग वो cm में और हमें चाहिए मीटर में तो 4.2 को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो इट विल बी समथिंग लाइक a 0.42 मीटर ओके second step is solved the third step is directly formula pi
ओके द पाई आर, ओके वन सेकेंड, मैं आर थोड़ा अलग लिखता हूँ, आर आई विल राइट समथिंग इन डिफरेंट मैनर, ओके द पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो आर तो हम लोग को मिला है सेकेंड स्टेप में, दैट इज दिस, एंड देन पाई तो हम लोग को मालूम है 7.22 into the pi r square, okay the pi r square, that is 0.42 into the 0.42, and into the height means what is the height, 3.6, okay the 3.6 is the height given, okay। तो ये सबको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल, रिमेंबर ये आंसर तुम लोग का पक्का पॉइंट में आएगा, बिकॉज 1 2 3 पॉइंट पहले से ही है। तो आफ्टर दिस यू गेट 1.99 सम आंसर, 1.99 is the answer of this, and remember मीटर क्यूब आएगा, बिकॉज उन लोग ने यहाँ पे क्या निकालने बोला है, इज द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, नो मैटर सी एम क्यूब, नो मैटर एम क्यूब, नो मैटर के एम क्यूब, लेकिन वो क्यूब में ही आएगा। ओके द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव इज द नेक्स्ट सम। Okay, let us start with the next sum. Next sum is the six. Okay, this is my one of the favorite sum, and yes, the student feel this thoda hard, because when the steps are increasing, the students really feel this hard. But conversion hona chahiye, just like anything into it's just a meter into the cm, cm into the km. Let us start with this. What we have is the example number six. Okay, example number six. We have the sphere. अभी इसका क्या निकालने बोला है, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लोग इस सर्कल की बात करते हैं, व्हेन यू राइट द पाई आर स्क्वायर, देन इफ यू राइट 4/3 पाई आर क्यूब, ये सब में फर्क होता है। तो प्लीज सी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, देन यू दिस इफ यू राइट 2 पाई आर, मतलब उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, देन यू एरिया का फॉर्मूला, ये सब में फर्क है। तो हम लोग को आज ये निकालना है, दिस इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला and this is the area का formula. So what we are having is data given is diameter, again यहाँ पे उन लोग ने diameter दिया, ये पूरा जो इसे diameter बोलते हैं, वन सेकेंड ना, in the green color ये पूरा diameter है, this is the diameter, and if you see in the red color this is the radius, and 7 का आधा करोगे तो you will get a 3.5। तो let us begin with this pi, pi मतलब कि 22/7 into the r square, that is the 3.5 into the 3.5, again 7 के टेबल में 3.5 नहीं है लेकिन 35 तो है, so 1 जा and this 0.5 जा, okay 22 into 0.5 into the 3.5, ये सब करने के बाद you will get something 38.5, and उसके बाद with the second step उसका वॉल्यूम 4.3 into the pi, that is 22/7 into the r cube, okay so r cube किधर है, okay the 3.5 जो हमें ऊपर ही मिला है, एक बार दो बार एंड देन तीन बार, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज करो डिनोमिनेटर, अगेन 1 जा 0.5, नाउ ये सब तुम लोगों को मल्टीप्लाई करने का, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस होल अबव एंड आल्सो डिवाइड बाय 3, यस कैलकुलेटर का थोड़ा यूज करो, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम तो एग्जैक्ट आंसर आता नहीं है, एंड बहुत से स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सम सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो वंस एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करो, व्हेन यू फाइंड कि आंसर इज कमिंग राइट, then manually solve karo, then the answer of this you'll get something like 179 point something, kuch bhi chalega, a cm cube, because this is the volume, okay। We have completed the sixth sum, and let us move on with the seventh sum। seventh sum bahut easy hai, seventh sum ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, वन सेकेंड बट ड्रॉ करना पड़ेगा, okay let us start with this, let us start with this, okay। What we have over here, what we have over here is example number your 7, okay। एक सिलेंडर है, okay again एक सिलेंडर है, okay again एक सिलेंडर है, okay। तो let us see कि इसमें थोड़ा पानी भर दे पहले, where is the water in this, okay this is, okay so we are having one level of water, let us assume कि इसका level पहला कितना था, okay 56, ओके तो 56.5 था, 56.5 था, एंड उसमें अगर तुम लोग एक ऑब्जेक्ट डालते हो, एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, द लेवल विल गेट इंक्रीज, द लेवल विल गेट इंक्रीज, इफ यू सी हियर तो लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा, एंड कितना इंक्रीज होगा इज गिवन इज 88.3, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग ने डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने बोला है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, योर सेकेंड वॉल्यूम माइनस योर फर्स्ट वॉल्यूम, योर
final volume minus your initial volume. So what is maximum? 83.5 minus your 56.5, and this is, अभी ये तो बहुत easy answer है. What we will get 31.8 cm cube. cm cube पहले से उन लोग ने दिया है. And yes, remember ml को cm cube भी लिख सकते हो. Do remember this. Okay, the next thing what we have is the 8 one. Let us do the 8 one also over here. Okay, the example number 8 what we have is, ये तो उससे ज्यादा easy है. 8 1. Okay, they have given the mass which is your 624. They have given the volume which is your 80. And if you remember the formula of density, density is equal to mass upon volume. Density is equal to the mass upon volume. And then what we get over here is once again, okay, that is your 7.8 ग्राम सी एम क्यूब. अभी बहुत से लोग बोलेंगे ग्राम सी एम क्यूब कहाँ से है. तो इफ यू सी दिस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8, उन लोग ने 80 के आगे सी एम क्यूब लिखा है. 80 के आगे सी एम क्यूब लिखा है. एंड जो 626 था उसके आगे ग्राम लिखा है. तो जो यूनिट था उसी को हम लोग ने कंटिन्यू किया. वी हैव नॉट एडेड समथिंग न्यू. वंस अगेन, वी हैव नॉट एडेड समथिंग न्यू ओवर हियर. Okay. So what is the next? I think 7 and 8 ये बहुत ज़्यादा easy थे. Means एक step answer ये. Just filling. Okay, now ninth one. Okay, ninth one is also same. Ninth one is not big deal at all. Okay, the example number 9 what we are having over here is the piece of the stone. The piece. Okay, the piece. Okay, the stone piece. इसका weight इतना है. Then वो water में डाला है. And then what is the density? Okay. That's so fine. Density ही पूछा है. जब उन लोग डायरेक्ट डेंसिटी पूछते हैं d is equal to m upon v, तो ऑब्वियसली उन लोग ने m दिया रहता है. m is your 25 sorry 22.5, sorry 225. आई थिंक ये 22 सम कर करके मेरे नंबर्स थोड़े नंबर्स में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है. 225. ओके, दैट्स सो फाइन. Then your 75, ये एक easy division. It's been a easy division. Is directly you can multiply by your 3 and you will get a CMQ. मतलब एक लाइन का आंसर ये. Example number 9. Then what we have is the example number 10. Okay, ये थोड़ा दमदार है आई विल से. जैसे कि मैंने कहा कि 10 से कुछ तो अच्छे सम चालू हो रहा है. ओके, मतलब बाकी सम भी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे यू हैव टू यूज योर ब्रेन एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. ओके, 7 स्टैंडर्ड, लेट अस डू दिस. अ 10 में क्या दिया है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पे दिया है दैट इज योर 8.9. एंड उन लोग ने कुछ फॉर्मूला यूज करने नहीं बोला. उन लोग ने जस्ट बोला है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम इज इन द केजी. एंड मैंने हमेशा बोला है अगर g अपॉन सी एम क्यूब हो एंड उसको कन्वर्ट करना हो इनटू द केजी अपॉन 1 सेकेंड किधर है? ओके, kg upon the m cube, तो you have to multiply by 1000. इज इजी. एंड बहुत से लोग बोल रहे थे इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है. इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें थोड़ा दिमाग यूज करना है. एंड दैट इज ओनली मल्टीप्लाइंग बाय 1000, जो कि दिया है इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो. जब हम लोग सब मल्टीपल्स बोलते व्हाट आर दिस, यहाँ पे उसका यूज होता है. सो इफ यू मल्टीप्लाई योर दिस बाय योर 1000, तो यू श्योरली गेट 8900. 8900 is the answer of this. I hope it's fine. अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, you can surely comment below the video on this. Okay, the 11th one, what we have is the 11th one. Okay, that is fine. That is fine. 11th one. Okay, 11th one is the most wanted sum. One of the most wanted sum. Let us see this. Okay, 11th one, what we are having the cubical shape object. Okay, थोड़ा cube draw करते हैं. Okay, let us draw some cube over here. Okay, this is the cube. This is the cube. This is the cube and उसका जो हर एक साइड है that is the 15 what cm. Okay, the 15 cm उसका length, breadth, width सब कुछ 15 cm है. And first of all let us do the first step. 15 cm है, उसको मीटर में कन्वर्ट करो. मीटर में कन्वर्ट किया 0.15 मीटर्स. ओके, दैट्स सो फाइन. फर्स्ट स्टेप सॉल्व. द सेकंड स्टेप इज उसका वॉल्यूम, मतलब v क्यूब. मतलब इसको 0.15
होल क्यूब को तुम लोग का आंसर निकालना पड़ेगा। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 0.15 इंटू द 0.15 इंटू द 0.15 इसको मल्टीप्लाई करो एंड यू श्योरली गेट वन आंसर। एंड जो आंसर मिलेगा आई विल से उसको रेस टू 3 लगा दो माइनस में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Okay, so what answer we are getting is something over 3375 into the 10 raised to minus 3। अभी हम लोग ये -3 को साइड, बिकॉज ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट को हम लोग ने साइड में निकाला। लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट। So this is your answer. Let us see what is the third step over here. The third step over here is equal to d is equal to m upon v, d is equal to n upon v। 1.35 is given and जो ऊपर हमें आंसर मिला उसे हम लोग नीचे लिखते हैं एकदम सिंपल वे में। ओके, दैट्स सो फाइन। एंड इससे अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो यू आर डेफिनेटली गेट 400 के जी एम स्क्वायर। बहुत से लोगों को 400 नहीं आ रहा, तुम लोग का कन्वर्जन हो रहा नहीं है मीटर से सीएम में, मीटर से एंड मीटर के वॉल्यूम में तुम लोग का झोल रहा है। अगर कन्वर्जन नहीं हो रहा है इन द मीटर एंड वॉल्यूम तुम लोग को एग्जैक्ट नहीं आ रहा एग्जैक्ट आंसर, तो 400 भी तुम लोग को नहीं आएगा। हाँ यस, कुछ 0.4 आ रहा है वो भी चलेगा, इट्स ऑल फाइन, यू आर इन द राइट वे। जस्ट तुम लोग का कन्वर्जन नहीं हो रहा, दैट इज फाइन। अगर तुम लोग का फीलिंग राइट है तो भी चलेगा। You can try this one more time, all the students. Okay. The next thing what we have, this again my one of the favorite sum I will say. The next sum what we have is over here 13. Okay. Okay, ये भी एक अच्छा sum है। Okay, what we have is the 12th example number 12। व्हाट इज गिवन इज पहला स्पीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, बाद में उसका डेंसिटी निकालना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फाइन, दैट्स ऑल फाइन। स्पीयर का वॉल्यूम 4/3, ये बाय हार्ट करके रखो, 4/3 पाई योर आर देन योर क्यू। ओके, लेट अस स्टार्ट फिलिंग। 4/3 पाई इज योर 22/7। कितना है ये आर स्क्वायर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। डायरेक्टली उन लोग ने रेडियस दिया, दिस इज रियली अ फाइन। 3 ones are 3, 3 ones are 3। बाकी बचा 4 into 22 into 3 into 3। ये मल्टीप्लाई करो एंड यू डेफिनेटली गेट 792 upon the 7। ये क्लास में मैंने करा बहुत डिवीजन, but some division are left। Okay, and after this division you will get a one thing over here। One second, let me see, a 13 point, yes yes, a 13.14, 113.14 you will get। मतलब ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी निकालने का, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ये हो गया एंड डेंसिटी क्या दिया है, आई थिंक इसमें दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी 7। ओके, डेंसिटी 7 गिवन। ओके, वंस अगेन, डेंसिटी 7 गिवन एंड ये वॉल्यूम यहाँ पे। ओके, तो मास निकालना है, कोई बात नहीं, तो मास निकालना है। तो व्हाट वी हैव टू डू सिंपली इज ये जो डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट साइड में पुश करना होगा। मतलब इट विल बी समथिंग लाइक 13.7 इंटू 113.14 एंड इसका आंसर व्हाट यू विल गेट इज द 791। मे बी 0.88 मिलेगा, मे बी 0.99 मिलेगा, समथिंग ऐसा कुछ मिल सकता है, बट चलेगा उतना। kg mass में है ना। So this was the sum and this sum is really amazing। Means we are having the formula and then we are having one of the big multiple points में जब आंसर आता है तो surely वो थोड़ा स्पेशल बन जाता है। Okay, the next thing what we have is your 13.1। Since बहुत से स्टूडेंट बोल रहे सर वी वांट टू सी ईच एंड एवरी सम, वी आर नॉट गेटिंग that much of time for this। 22 sums, can you imagine? 22 unsolved and 17 solved, 39 sum in one lesson। but still हम लोग ने बहुत कुछ attempt किया in this। Okay, so let us see next what we have is the 13.1 is straightforward man। 13.1 is straightforward, किधर है? 13.1 is straightforward, density is equal to mass upon volume। एंड उन लोग ने बोला कि वॉल्यूम निकालो। ओके, सो वॉल्यूम ऊपर जाएगा, डेंसिटी नीचे आएगा। द मास दे हैव गिवन इज कितना, 280 kg, 280 kg। एंड देन नीचे उन लोग ने दिया डेंसिटी 18। ओके, 800 kg अपॉन द एम क्यूब। अभी एक चीज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये केजी और ये केजी कट हो जाएगा एंड जो बचेगा दैट विल बी ओनली द एम क्यूब। सो जो आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू एम क्यूब, इतना तो फिक्स हो गया।
Now let us solve this, and ये solve करने के बाद surely you'll get a 0.35 0.35 m cube. This is the final answer. Please units के ऊपर ध्यान दो. Answer right आ गया चलेगा, but units को भी marks होते हैं. Okay, so what we have next over here? Next. Okay, next we have the 14 one. Okay, let me see this sum. 14 क्या निकालना है इसमें? We are given the length. This is a cube. This is the cube, and then सबसे पहला वॉल्यूम मास. ओके, दैट्स सो फाइन, ये भी वैसा ही है. ओके, दिस इज योर एग्जांपल नंबर दिस, एंड वापस हम लोग के पास एक क्यूब है. वी आर हैविंग अ क्यूब ओवर हियर. ओके, मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ. ओके, दिस इज द क्यूब. ओके, दिस इज ऑल फाइन, दिस इज ऑल फाइन. Then what we have over here, let me change this pencil. Okay, इसका लेंथ. ओके, दिस डायमेंशन डायरेक्टली हम लोग ने डायमेंशन दिया है, बहुत सही काम किया है. 75 60 एंड दैट इज द 30, ऐसा हम लोग ने डायमेंशन दिया है. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, उसके तो नाम में ही क्यूब है, द वी क्यूब. वी कैन राइट दिस, मतलब साइड, सॉरी वी क्यूब नहीं, अ साइड क्यूब. मीन्स योर 75 इंटू माई 60 इंटू द 30, इसका तुम लोग को मिलेगा एक वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड एज. बट कंडीशन अप्लाई, ये सब उन लोग ने सीएम में दिया है, एंड वॉल्यूम तो निकालना है लेकिन मीटर में कन्वर्ट भी करना है. तो आफ्टर कन्वर्जन यू विल गेट 0.35, not cm. This is your m. This is simply your m. हो गया ये. This was the first step. Now moving back to the second step, density is equal to the mass upon volume. हमेशा की तरह they are saying is what we have to find the mass. Okay, mass find out करना है, मतलब d into v. वॉल्यूम तो मिल गया, एंड डेंसिटी उन लोग ने कितना दिया है, लेट मी सी दिस. 910. ओके, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 910 इंटू 0.135, एंड इसका जो आंसर मिलेगा दैट इज वन सेकेंड. ओके, दिस इज व्हाट वी गेट इज 122 point this 85 and the unit is the kg. again वो cancel हो जाता है ना अपना. okay, this is all fine, this is all fine. 14, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है you can surely comment below this video. okay, we are getting closer, we are getting closer. okay, 15 1, बहुत से सम दिखने में बड़े रहते हैं, बट इफ यू ड्रॉ द डायग्राम तुम लोग को पता चलेगा कि उसका कंटेंट बहुत है लेकिन उसमें उतना कुछ वर्क नहीं है. सो लेट अस ट्राई दिस. व्हाट वी हैव इज द 15 1. क्या दिया इसमें? ओके, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन. वॉल्यूम 1 दिया है, वॉल्यूम 2 दिया है. वी वांट फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू v2 minus v1. so let us begin with this. v2 is 43.8 minus your 22.6. you surely get, ये बहुत minor subtraction है, 21.2 gram. okay, this was the first step solved. second step, density is equal to mass upon volume. density is equal to mass upon volume. mass दिया है क्या? the mass. okay, mass is given over here, and volume is also given 25 ml को हम लोग convert कर सकते हैं into the cm or the meter also. okay, 22.2 21.2 upon your this, जो हमें ऊपर आंसर मिला, मतलब ये आंसर मिला, हम लोग इसे यहाँ पे नीचे ले रहे, दैट इज द मास. व्हाट वी आर गेटिंग इज कन्वर्टिंग दिस, एंड देन द रियल वॉल्यूम जो हम लोग ने दिया है 25 ml. so after the division you will surely get 0.848. okay, so बहुत बार ऐसा मतलब लगता है कि मास लेने का कि वॉल्यूम लेने का, बट सी वॉल्यूम हम लोग ने क्या लिखा है, ml लिखा है क्या. and if they are saying about the mass, g दिया है तो that is surely your mass, and ml दिया, that is 100% your volume. so there is no mistake मतलब in this. okay, next sum is also, I will call it this sum as a सस्ता sum. दिखने में बड़ा है बट उतना हार्ड नहीं है. ओके, वी गॉट 16 1. ओके, बहुत बड़ा सम दिख रहा है ये लेकिन उतना बड़ा है नहीं. वी हैव टू जस्ट डू द again. volume 1 is given, volume 2 is given, we want the final volume. so final volume is equal to the v2 minus your v1. so किधर है ये v2? okay, उसके नीचे मैं लिखता हूँ, v2 के नीचे is your 60 minus 36 is equal to 24 ml. okay,
हो गया, वी मिल गया तुम लोगों को, वी जो यूज है और जिसका यूज है, ओके। वन सेकेंड, आई विल राइट इन द ब्लू कलर, आई विल राइट इन द ब्लू कलर, ओके। दिस इज v given over here. V given is 24 ml and the mass given is कितना mass दिया है is 840 842 gram. Okay, density is equal to m upon v. Density is equal to the m upon v. Okay, so the mass given over here is the one second, one second. Conversion, they are converting, nahi, utna nahi, no conversion. Okay, this what they have given is 84 point, yes, 84.2, that's so fine. And volume जो हम लोग ने अभी निकाला 24. After this division you will surely get 3.5, 3.5, but what, a g upon ml, a g upon ml. Okay, sixth one is finished. Okay, the seventh one, oh my god, this is amazing, this is amazing. Let us start with this. I hope सबको समझ में आ रहा है. This is the simplest way I can do this solution. Okay, where am I? Okay, this is, okay, this is where, okay. Students, again, if you have any doubt you can comment below this video. Okay, the next thing, 17.1, finally 17.1. We are starting with the speed, and speed का formula सबको याद ही है. Speed is equal to distance cover upon the time taken. क्या दिया यहाँ पे, the distance एक and जो distance cover करी, that is the 24 cm, and the time taken is equal to this 30 seconds. But cm को मीटर में कन्वर्ट करो तो इट विल बी 0.24 मीटर. एंड सिंस ये डिस्टेंस कवर अपॉन द टाइम है, तो ये दोनों को डिवाइड किया, एक लाइन में तुम लोग को ये आंसर मिलेगा 0.8 ms, 0.8 ms. कंडीशन अप्लाई, रेस टू -3 आएगा. एंड अगर तुम लोग को 0.8 सस्ते में चाहिए तो सी एम अपॉन एस लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे -3 तुम लोग लिख सकते हो, 10⁻³ बट कुछ भी करके यू हैव टू बैलेंस. जहाँ पे जी है वहां पे सीएम आना चाहिए, जहाँ पे केजी है वहां पे मीटर आना चाहिए. बस ये बात याद रखोगे. मूविंग बैक टू द नेक्स्ट सम, व्हाट वी हैव हियर इज द सम नंबर 18. 22 sums, 22 sums we are doing. Sum number 18, sum number 18, again one of the sum we got over here. Okay, what we have is, कोई तो भाग रहा है यहाँ पे and complete करते हैं 100 meters. Distance is equal to the 100 meters in what, in 12 seconds. Time taken is equal to 12 seconds. Okay, meter में, and ये okay, this is fine. Speed is equal to the distance upon time, एक line में. Okay, so 100 divided by 12 is equal to a straightforward answer, 8.3 ms. One of the fine sum, I will say. Okay, उसके नीचे we will solve the 19. Okay, ये भी वैसा ही है. This sum is also same, but condition apply. Condition apply. What is this? अभी ये जो next sum है ना, वो भी उसकी तरह है. किधर है वो? 11th, I think 11th था ना वो, कुछ तो conversion वाला. 11th नहीं, ये 10th था अपना, 10th वन. कुछ फॉर्मूला नहीं है इसमें, जस्ट आपको फॉर्मूला का यूज नहीं, दिमाग एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है, विच आई ऑलवेज से, ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, व्हाट वी हैव द 19 ओवर हियर इज 36 की m upon h दिए. You have to convert this into what? ms. So अगर हम लोग 36 की बात करते, 36 किलोमीटर, I will ask one question to you. What is 1 kilometer in the meters? You will say 1000. आता है ना सबको. Okay, then if I ask 1 hour में कितने सेकेंड है, you will say 60 minutes into the 60 second. Okay, the 0 0 0 cancel. कितना बचा? And yes, 6 ones, 6 6, इधर वापस 6 cancel. Okay, hardly we get a 10, and which is a nice answer. Okay, the answer of this is straightforward, a 10 ms. Sum बहुत easy है. 60 into 60, 1 hour. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले ही कहा था लेसन के कन्वर्जन सीख के लो. कन्वर्जन में झोल हो गया तो यू विल वेस्ट मेनी स्टेप्स, एंड कन्वर्जन आता है, एक लाइन में आंसर तुम लोग को मिल जाएगा. Okay, let us start with next. What we have over here is okay, 19 over here, 19 over here. Okay, 20. Okay, we are there, we are there.
20. A boy is running at the uniform speed of, okay, the speed is given. The speed is given मतलब अभी चालू हो गया, झोल चालू हो गया, मीन्स अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दिया है, अभी नेक्स्ट देखते हैं उन लोग ने और क्या दिया, डिस्टेंस दिया, ओके डिस्टेंस दिया, दैट इज 20, दैट इज 22. वाई आई सेड झोल, बिकॉज अगर ये दोनों दिया है तो टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड टाइम को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जस्ट लाइक टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो ये दोनों को डिवाइड करना होगा, डी इज इक्वल टू 2.25 अपॉन द स्पीड व्हाट वी हैव द 4.5, बट अगेन 2.5 इज द किलोमीटर एंड उससे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसका आंसर विल बी समथिंग 2250 अपॉन 4.5, एंड इसका यू गेट आंसर एज 500 सेकेंड्स। नाउ द स्टूडेंट विल आस्क सर वो 2.25 था उसका ये कैसे हुआ, माय आंसर इज ओनली वन, 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, यूएल से 1000 मल्टीप्लाई करो 1000 से, ओके दैट्स ऑल, दिस वाज द सम नंबर 20 व्हाट वी हैव ओवर हियर इज, only two sums are remaining and दोनों भी easy है, okay 21 what we have over here is a walking with a constant speed, okay वापस वापस speed दिया मतलब वापस पिछले बार जो सम था वैसे था, how much distance she will cover in the time in the 40 minutes, okay 40 minutes उन लोग ने टाइम दिया है, नाउ 40 मिनट्स को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 40 मिनट्स वन सेकेंड 60 से नहीं, ये कुछ अलग सीन है, ये कुछ अलग सीन है, बिकॉज दे वांट द आंसर हाउ मच टाइम विल बी टेकन, ओके ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है, ओके ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, अगर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो कितना आर इज इक्वल टू द 40 मिनट्स, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू श्योरली गेट आंसर लाइक 0.6 आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ओके तो मिल गया हम लोग को डिस्टेंस से ये, देन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग को क्या निकलना है वैसे, ओके वी वांट डिस्टेंस, मतलब इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, एस इंटू टी इज इक्वल टू डी, एस जो कि ऊपर दिया 4.2, टी जो हम लोग ने अभी निकाला 0.6, और आंसर जो अभी हमें मिलेगा दैट इज द 2.8 प्योरली के एम, दैट्स ऑल, ये बहुत इजी सम है, बट सी द कन्वर्जन, सी द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आई थिंक बहुत बार ये क्लास में सॉल्व किया है, बट सम डिविजन्स को वी हैव नॉट गॉट अ टाइम, finally we have the last one, 22, this is also easy, we have one park, okay we have one park, distance cover हो रहा है and the radius in shape, okay मतलब एक ऐसा मतलब पार्क है जो कि सर्कल शेप में, एंड समवन इज, इमेजिन समवन इज रनिंग ओवर देयर इन दिस डायरेक्शन, तो एक राउंड होने के बाद इट विल बी अ सर्कमफेरेंस, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, इफ यू सी द सर्कमफेरेंस और 2 पाई आर, कुछ स्क्वायर है या क्यूब, क्यूब नहीं इसमें, 2 पाई मतलब योर दिस, एंड व्हाट इज योर दिस गिवन इज, कितना है ये रेडियस, वन सेकेंड ना, लेट मी सी, द रेडियस इज 70 मीटर, ओके दैट्स ऑल फाइन, ओके 70, ओके बहुत इजीली हो गया, 1 जा 10 जा 2 into 2 4 4, okay that is the easy answer 440, and what was this meter, this is a fine answer over here, okay but again हम लोग ने जो टाइम दिया यहाँ पे that is the 3 minutes, 3 minutes multiplied by 60, so 3 into 60 will give you the answer something in the seconds, you will get something answer in seconds, so let us do this, 4 upon 440 upon 3 into 60, एक 0 cancel over here, and this can be written as 2 2s 3s, then directly 22, नीचे क्या 9 आएगा, ये दिस इज 3 नीचे 9 आएगा, 22 upon 9, एंड ये पूरा डिवाइड करने के बाद यू गेट 2.44 upon the ms, so this was all, so मैंने 22 सम सॉल्व किए just for some divisions, just because of holiday होने में पूरा सिखा नहीं पाए, some were remaining, okay now if you want a good marks in the exam in this physics paper, so there are only two things what I always see is, first one is your brain, and then second thing is your presence of your mind, and yes to all my students from the division A से लेके F तक,
I will say best of luck. Give your best. Give your best. And if you have any question, you can surely message. You can comment below this. Bye bye and best of luck again. That's all. That's